Hello everyone and welcome to C.B.A. Smart Classes. My name is Kushagra and we would be learning Hindi, English, Math, Science, SS, pretty much all the subject of class from class 9 to class 12, and I would be only uploading videos related to C.B.S.E. as of now. Today we would be learning or beginning our English of C.B.S.E. class 12. We are picking up Vistas first, and the very first chapter is the third level. So let's begin our chapter. Before beginning our chapter, I must recommend you to have your notebook and pen ready to make your own notes, because there is nothing better than own notes. So without any further ado, let's begin our chapter. I would be doing line by line explanation of this particular chapter. I would be reading and then explaining. So it would be like a class for you. So I would recommend to have your book ready and a pen and paper so that you can note down and make your own notes. All right, good to go? Let's begin our chapter. No. No. The Third Level by Jack Finney. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? I do. Do you? So, there are most of the times, you कुछ ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ and you feel like कि भाई I'm telling it to someone but nobody is understanding me, but it's true, but nobody experiences it. So they find hard to believe you that is it true or not. So have you had any experiences like that? If you have, you can go ahead and comment. All right. The presidents of the New York Central and the New Haven and the Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three, because I have been on the third level on the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious steps. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at the Grand Central Station. So here it is written in perspective of the narrator. It is a kind of a thing as in when narrator is talking to us. So in this whole story ऐसा होगा कि कभी-कभी वो हम most of the time वो हमसे बात कर रहा है as an audience, as a reader, and वो अपने बारे में भी बता रहा है कि क्या हो रहा है. It is just like if you have watched Love आजकल, it is pretty much like that, as in where वो present में भी रहता है और फिर कभी past में भी चला जाता है कोई story सुनाने. So it is like that, okay? So here what happening is वो बता रहा है, अभी तो फ़िलहाल हमसे बात कर रहा है और हमसे इंटरैक्टिव वे में, और वो बताना चाह रहा है, जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि भाई प्रेसिडेंट्स ऑफ फ्यू रेलवे स्टेशन, बेसिकली ही इज़ अ कम्यूटर ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन में ट्रैवल करता है और ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है. सो उसी से ये इसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लिया. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन सबवे है न्यूयॉर्क में. सो न्यूयॉर्क सेंट्रल से लेके न्यूयॉर्क तक, या फिर हार्टफोर्ड कनेक्टिकट एक स्टेट है, वहाँ पे हार्टफोर्ड एक जगह है, या न्यू हेवन, ये कुछ रेलवे स्टेशन है. तो इन सब के अगर प्रेसिडेंट भी आ गए और सब लोग आने के बाद दे आर स्वेयरिंग ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, मीन्स हर ट्रेन का टाइम टेबल होता है, उसके स्टैक पे, उसके ढेर पे वो हाथ रख के कसम खाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेशन हैं, 2 ही लेवल है, 2 लेवल से ज़्यादा कोई लेवल नहीं है. लेकिन आई एम सेइंग कि वहाँ पे 2 नहीं, वहाँ पे 3 लेवल हैं, 3 लेवल हैं रेलवे स्टेशन के. सो
that is a confusion going on. And he says that I have seen that third level and people are not believing that. Everybody is saying there are only two levels. Now what he has done now, as a sensible person, we all say that, oh, this is something hallucination, कुछ तुम्हें मति भ्रम है, तुमने कुछ सोच लिया है, दिमाग में कुछ चल रहा है, जाओ डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें कैसे दिख रहे हैं ये तीन, जाओ गो एंड डॉक्टर को दिखाओ. सो उसी तरीके से कहता है, येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स. तुम ये मत सोचना कि मैंने कोई ऑब्वियस स्टेप नहीं लिया है. नरेटर कह रहा है, आई वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. मतलब वो और उसकी वाइफ दोनों साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास गए. अब वहाँ पे बात करने के बाद पता चलता है फाइनली कि वो उसको बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसा ऐसा मुझे दिखा थर्ड लेवल, एंड पीपल आर नॉट बिलीविंग दैट देयर इज़ थर्ड लेवल. उसकी बीवी भी उसके साथ होती है. एंड वो उसके बाद बोलता है कि साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड एज यूजुअल बोलता है कि भाई इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू द रियलिटी कि भाई कि थर्ड लेवल है या नहीं है. इट इज़ एक्चुअली यू आर अनहैप्पी. इट इज़ एक्चुअली योर मेंटल दिमाग की उपज है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अनहैप्पी हो. जैसे ही वो ये बोलता है यू आर अनहैप्पी, उसकी वाइफ तो गुस्सा हो जाती है, बोलती है अरे शी बिकम्स अनहैप्पी एंड शी बिकम्स मैड कि भाई ऐसे कैसे अनहैप्पी, आई एम मेकिंग हिम वेरी हैप्पी. बट वो कहती है कि वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन फाइनली वो उस बात को संभालता है उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड और कहता है कि इट्स नॉट यू जो अनहैप्पी है इन दिस करंट सिचुएशन, एवरीबडी इज़ अनहैप्पी. किसी को इनसिक्योरिटी है, किसी को वॉर की चिंता है, किसी को वरी है, चिंता है, और किसी नहीं है एक्चुअली. सो वो उसको इस तरीके से समझाता है, कहता है कि सबको इनसिक्योरिटी है, फियर है, वरी है, किसी को वॉर की वरी है, एंड इसी वजह से तुम अनहैप्पी हो. तो बीवी को गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है. वेल हु डजंट. एंड देन नरेटर सेज कि भाई किसी नहीं है, सबको ही है, सभी, ये कौन सी तुमने नई बात बताई, हाँ सबको ये दुखी है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग. हु डजंट. और इसका ये मतलब तो नहीं है कि सब लोग जाके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक नया एस्केप ढूंढना चाह रहे हैं या वहाँ जाकर उनको थर्ड लेवल मिल जाता है. ऐसा सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन सभी वरीड है. तो मेरे साथ ही क्यों हुआ है भाई, मेरे साथ ही क्यों हुआ है कि मुझे थर्ड लेवल दिख रहा है. But that's the reason, he said. And my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamps collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. From all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. So now what happened? वो अपनी उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि देखो ये कुछ नया न तुमने नहीं किया है, तुम्हें हर वक्त तुम ऐसा करते रहते हो. जैसे हाल ही में तुमने ये हरकत करी थी कि तुम बीच में स्टैम्प्स कलेक्ट करने लगे थे. स्टैम्प जो होते हैं ना, जो आजकल तो इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट पोस्ट कार्ड्स में स्टैम्प लगते हैं, 2 रुपये के, 1 रुपये के वो स्टैम्प्स आते थे, उसके ऊपर चिपकाए जाते थे और फिर उसको भेजा जाता था. और if you do not know, you can go ahead and visit this any post office. From there you can get it. Oh, rather, right now it's a COVID time, don't go anywhere. So what you can do, you can go ahead and search online. I'll try to post somewhere something here and there on the video. So yeah, you can do it this way. And what happened? Finally stems होते हैं. So वो stems जो है तुम कलेक्ट करते थे, और वो कलेक्ट करना भी एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज है रियलिटी से. क्योंकि टेम्प्रेरीली तुम जब कोई स्किल करते हो या कोई हॉबी में इन्वॉल्व होते हो तो तुम एक तरीके से वहाँ से यू शिफ्ट योर माइंड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड कुछ समय के लिए तुम उस दुनिया में चले जाते हो. सो वो भी एक तुम्हारा टेम्प्रेरी रिफ्यूज था. वो जब ऐसा कहता है तो उसके फ्रेंड्स एंड एवरीबडी लाइक सेड ये यू आर राइट, ही डज दैट. सो and he also did the thing which you are saying, so you are kind of true. So वो इस तरीके से उसको उससे अग्री करते हैं साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से. लेकिन फिर इसके पीछे वो तर्क देता है, ये क्या बात हुई,
ये क्यों बात हुई, अगर मैंने स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ या मैं यू नो अगर ऐसा कुछ करता था तो इसमें ऐसा क्या अनोखा मैंने करा। देर आर मेनी पीपल हु डज इट, लाइक मेरे ग्रैंडफादर ने एक कलेक्शन शुरू करा था, वो कलेक्ट करते थे, लेकिन वो तो कहीं से escape नहीं करना चाहते थे। जिस टाइम वो कलेक्ट करते थे, जब वो जिंदा थे, एट दैट टाइम ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ। वो तो नहीं गए कहीं, और उन्होंने ये शुरू करा था। वो तो बल्कि फर्स्ट डे कवर भी इकट्ठा करते थे। अब ऐसा नहीं होता है कि वो जाएं और वो स्टैम्प्स खरीदें। फर्स्ट डे कवर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इन योर कॉपीज, इन योर नोटबुक्स, दैट फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर बेसिकली जो स्टैम्प कलेक्शन की जिनको हॉबी होती है, वो क्या करते हैं, वो पहले ही दिन कोई स्टैम्प अगर रिलीज़ होता है या कोई स्टैम्प लॉन्च होता है, तो वो उसी दिन जाते हैं और पोस्ट ऑफिस से वो स्टैम्प खरीद के लेकर आते हैं, और उसको एक ब्लैंक एनवलप में रख, कुछ होता नहीं है, या एक पीस ऑफ पेपर रख के सिंपल एक ब्लैंक एनवलप होता है, और उसके ऊपर वो स्टैम्प लगा के स्टैम्प पोस्ट करते हैं अपने ही एड्रेस पे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, एक तो पहली बात, उन्हें स्टैम्प मिल जाता है उसी दिन का, और जिस दिन वो लॉन्च होता है, जिस दिन वो हो जाता है, जब उस पर स्टैम्प लगते हैं तो वो डेट भी मेंशन हो जाती है। सो उनको डेट वेट का प्रूफ होता है कि भाई इस दिन ये तारीख में ये लॉन्च हुआ था और इसी तारीख में मैंने ये ख़रीदा था। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट डे कवर, उसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर। सो आमतौर पे जिनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, वो करते हैं इस तरीके की हरकत, जिसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर्स। सो मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, ये बोलता है नरेटर कि मेरे ग्रैंडफादर भी तो करते थे ये काम, और उनके पास तो इतने सारे फर्स्ट डे कवर्स हैं जो आज की डेट में मेरे साथ, या मेरा जो कलेक्शन आज मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, वो मेरे ग्रैंडफादर की तो क्या है, वो भी तो करते थे, लेकिन वो तो कोई एस्केप नहीं ढूंढते थे। और रही बात मेरे ग्रैंडफादर, चलो ठीक है तुम कहोगे मेरे ग्रैंडफादर, लेकिन लुक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यूएस के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करने का उनको शौक था, वो भी कलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, so he's kind of not accepting what his psychiatrist friend is trying to tell him, or to convince him that he find bhai, there is no third level. The actual thing is that you are trying to escape from it because you're unhappy with your life, and this is what you are going through, and इसीलिए तुम्हें ये थर्ड लेवल दिख रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। बट वो जो है, वो अपने सारे तर्क और सारी बातों को रख रहा है, और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं। Anyway, here's what happened at Gantry Central. Now look. Now the narrator is going back to the time when he experienced it, when he found Grand Central Station में third level. Let's see कैसे उसको मिला. Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get down to my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now he's telling you the situation कि actually एक रात की बात है। उस रात मैंने ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम वाम कर रहा था, और काम करते करते मुझे लेट हो गया, और लेट होने की वजह से क्या हुआ कि मुझे अब अपने घर जाना था, मुझे जल्दी घर जाना था, रात हो चुकी थी। तो मैं सोचा था मैं कैसे घर जाऊं तो देर ना हो जाए ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि सबवे ले लेता हूँ। सबवे इज़ लाइक अ मेट्रो, ओके। सो मेट्रो ले लेता हूँ। सो मेट्रो इज़ अ फास्टर रूट कम्यूट देन द बस और एनी रोड ट्रांसपोर्ट। सो उसने बोलता है कि बस से तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेट्स गो ahead and take metro and or subway. It will help me to reach my home in time, or rather on time, whatever you say. So now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. Now here in this paragraph, narrator is introducing himself and also introducing his wife. So in this particular paragraph, what we see, he introduced him as a very ordinary guy, and he says that कि भाई actually ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मैं कोई ऐसा अनोखा भी नहीं हूँ, या कोई मैं प्रिंस या कोई
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय यार। मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 ईयर्स का हूँ, और मैंने ऐसे बड़े टैन गाबर्डिन सूट पहना है। अब व्हाट इज टैन गाबर्डिन सूट? टैन इज बेसिकली अ कलर, ओके, TAN, टैन। हम कहते हैं ना धूप में ज़्यादा निकल जाए, अरे मुझे टैन हो गया, मेरा मुंह देखो, मुझे टैन हो गया। सो दैट इज टैनिंग, ओके, टैनिंग वी से, टैनिंग हो गई। सो टैन इज अ काइंड, इट्स अ कलर, इट्स अ ब्राउन कलर. Okay, you can see on my forehead it's lots of tanning. So yes, so it's like a brown color. And gabardine is a material, a cloth, जिससे हम suits बनाते हैं. So tan, you understand, tan gabardine suit. So it's normal suit, a brown suit. ऐसा भी नहीं है कोई बहुत चटक पटक रंग का कोई सूट पहन रखा है, किसी स्पेशल सिल्क का या किसी में, वेरी ऑर्डिनरी टैन गाबर्डिन सूट पहन रखा है, एक स्ट्रॉ की हैट लगा रखी है, और मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी सा हूँ, बस एक छोटा सा थोड़ा सा फैंसी सा बैंड हैड बेन ऑन द हैट ही इज़ वेयरिंग. So he said that I passed a dozen of men, भाई दर्जनों लोग मेरे पास से गुजरे गए. Everybody, I was looking like very common, ऐसा कोई extravagant या ऐसा कोई special और ऐसा different नहीं लग रहा था. I was just a normal guy and I just wanted to go home. I want to rush to home and to my wife, to Louisa. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading from the subway, and got lost. That's easy to do. I have been in and out of the Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. So these are the important things. So whenever something important is coming up, please underline it, or please write it in your notebook in a point format. Take a points में लिखना कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, not the whole lines, not whole paragraphs. It will help you to remember the story whenever you're going to revise it. So what is it saying? It's saying भाई ठीक है, फिर मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू एक जगह है, वहाँ से मैं मुड़ा और मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ बढ़ा. अब जब ग्रैंड सेंट्रल में बढ़े और फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं फिर नीचे गया, फिर मैं ऊपर गया, कुल मिला के एक नॉर्मल रास्ता बता रहा है कि मैं फर्स्ट लेवल पे आया. फर्स्ट लेवल, फिर वहाँ से मैं नीचे होता तो वो सेकंड लेवल पे आया, और वहाँ से ही सबअर्बन ट्रेन मिलती हैं या वहाँ से 20th सेंचुरी की ट्रेन मिलती हैं. यहाँ से अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि ये स्टोरी जो लिखी गई है या जो ये सिचुएशन अपनी बता रहा है is not from 21st century. मीन्स ऐसा नहीं है कि 20वीं मिलीनियम के बाद कोई स्टोरी है. इट इज़ बिफोर इट. सो 90s की स्टोरी, 1900 से लेकर 1999 तक की कोई ये स्टोरी है, क्योंकि उस समय को ही हम 20th सेंचुरी कहेंगे, है ना. सो और उसके बाद 21st century. So he's telling कि भाई actually this story is written in somewhere on 19s, okay, 1900 से लेके 1999 तक. तो वहाँ पर जैसे ट्रेन मिलती है आमतौर पे हम लोग लेते हैं, वही सारी ट्रेन मिलती है, कोई नया अनोखी चीज़ तो है नहीं. फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से सेकंड लेवल पर हम आ गए, और सेकंड लेवल के बाद फिर वहाँ से मिलते हैं, और फिर वहाँ पे एक आर्च डोरवे था. मीन्स एक ऐसा डोरवे था, एक रास्ता था, एक दरवाज़ा था जो आर्च था उस पर, ओके, मुड़ा हुआ था. सो वो उस रास्ते, उस डोरवे में गया, और जैसे ही वो उसके अंदर गया एंड ही गॉट लॉस्ट, और वो वहाँ पे खो गया. और फिर वो बाद में बोलता है that is again not very unique, or that is not very it didn't happen first time, it used to happen, बहुत बार हो चुका है और होता रहता है उसके साथ. और जैसे कि वो बताता है कि पहले एक बार वो कभी खोया तो वो किसी होटल के अंदर निकला, होटल के सामने वो रास्ता खुला, और ऐसी कभी एक बार वो ग्रैंड सेंट्रल में जा रहा था तो किसी रास्ते में वो खो गया, और जब वो उस रास्ते से बाहर निकला
तो वो एक मतलब 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स को पार करके एक नया कोई ऑफिस बिल्डिंग थी 46th स्ट्रीट पे। वहाँ पर वो खुल के मतलब वहाँ पर वो जो सुरंग थी वो सबवे था वो खुल रहा था। सो ही सेड दैट मैं आमतौर पे खोता ही रहता हूँ, हज़ारों बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बहुत बार आता हूँ ग्रैंड सेंट्रल में, लेकिन एवरी टाइम आई गॉट लॉस्ट एंड वो रास्ता कहीं ना कहीं मुझे नया लेकर जाता है। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park. And maybe because, for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that. So, what he's saying? He's saying, अब वो क्या बता रहा है कि वो कहता है कि भाई मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ की जड़ें और टहनियाँ बढ़ती हैं उसी तरीके से इसकी भी भाई ये भी ग्रो कर रहा है एक ट्री की तरह। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि नई नई स्टेयर केसेस, नए नए कॉरिडोर्स ये पेड़ की रूट्स की तरह ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ सबवे तो ज़मीन के अंदर है। सो तो ऐसा लग रहा है कि वो रूट्स की तरह ग्रो कर रहा है, क्योंकि गॉड नोज ये कभी ऐसा भी हो सकता, हमें नहीं पता कौन कौन से रास्ते इसमें से बन रहे हैं। जैसे हमें नहीं पता पेड़ की जड़ें कहाँ कहाँ तक नीचे डेप्थ में जा रही हैं, उसी तरीके से हमें नहीं पता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की नई नई कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस कहाँ कहाँ बन रहे हैं, नीचे कहाँ कहाँ तक फैल रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर तक फैल रहे हैं या फिर सेंट्रल पार्क तक फैल रहे हैं, या क्या पता वहाँ से कहीं से निकल जाए कुछ दिनों बाद सेंट्रल पार्क में कोई रास्ता या टाइम्स स्क्वायर में कोई रास्ता। टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क आर द मेन वो होते हैं ना मेन पॉइंट्स जहाँ पे या ऐसी लोकेशंस जहाँ पे लोग इम्पॉर्टेंट लोकेशंस यू कैन कॉल देम, लाइक रामपुर में गांधी समाधि या फिर दिल्ली में सीपी, सो समथिंग लाइक दैट। सो एक बड़ा एरिया जहाँ पे लोग घूमने अक्सर में आते हैं, एक फेमस प्लेस जैसे इंडिया गेट हो गई, समथिंग लाइक दैट। सो टाइम स्क्वायर इज़ अ प्लेस एंड सेंट्रल पार्क इज़ अगेन अ प्लेस। सो यहाँ पर वो रास्ते खुल रहे हैं, गॉड नोस कि नीचे नीचे कहाँ कहाँ पे रास्ते खुल रहे हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। और बहुत सारे लोगों हाउ कैन वी से इट, मे बी बहुत सालों से ग्रैंड सेंट्रल है और बहुत सालों से लोग अपने एस्केप के लिए इस रास्ते को चूज़ कर रहे हों। God knows how many people want it and how many people has been, how many people used it as an exit. Maybe that's how the tunnel I got into. और maybe इसी तरीके से मैं उस टनल में घुस गया हूँ जहाँ पे मैं आज जहाँ से मुझे ये 3rd लेवल मिला। So maybe that is the reason. And वो क्या बताता है कि देखो, but I have not told my psychiatrist friend this particular thing. I have not told or I have not discussed this idea which came into my mind, which I am discussing with you as a reader, but I have not discussed it with my psychiatrist friend. God knows वो इसका क्या अनुमान निकाले या क्या इसको ट्रांसलेट करके इसका क्या मतलब निकाले, नॉट अनुमान, कैसे ट्रांसलेट करे इसे और उसका क्या वो मतलब समझे. So I have not discussed it with my psychiatrist friend. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footstep, and I didn't pass a soul. When I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking, the tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the 2nd level. But I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. And the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights.
ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग दैट फाइनली वो उस रास्ते में आगे बढ़ता है और आगे चलता है, मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, नीचे सीढ़ियों पे उतरता है और आगे बढ़ता है, और वो कहता है कि उस रास्ते में कोई है ही नहीं, बस मेरे ही पैरों की आवाज़ें बार बार मुझे सुनाई दे रही हैं, बिल्कुल सुनसान, एक व्यक्ति उसमें नहीं है, एक पर्सन भी वहाँ से पास नहीं करता है, एक सोल भी। देखो वो भी एक लाइन यहाँ पे लिखता है, और उसने बोला है कि भाई, I could only hear my own footstep. I didn't pass ahead. I didn't pass a soul. मुझे एक भी व्यक्ति वहाँ से पास होते हुए नहीं दिख रहा है, ना सुनाई देता है, बस मेरी ही आवाज़ पैरों की फुटस्टेप की गूंज रही है। एंड ये देखकर मैं थोड़ा सा यू नो आई 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 वाज लाइक अ लिटिल कि भाई कौन है, कोई क्यों नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर बिल्कुल शांति, और फिर मुझे ऐसा दूर से सुनने में लगता है कि भाई दूर कहीं आवाज़ें आ रही हैं बात करने की, तो फिर मुझे लगता फाइनली वो वहाँ से लेफ़्ट मुड़ता है, और लेफ़्ट मुड़ने के बाद वो देखता है कि वो थर्ड लेवल ग्राउंड स्टेशन पे पहुँच गया है। एंड फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट को तो उसको लगता है कि ये थर्ड लेवल है, या ये दोबारा से मैं सेकंड लेवल पे घूम फिर कर आ गया हूँ। सो ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। फिर फाइनली उसको पता चलता है नहीं नहीं नहीं, ये मैं सोच ही रहा हूँ, मैं दूसरे लेवल पे नहीं आया हूँ, मैं अब एक नए लेवल पर आया हूँ जो है थर्ड लेवल। अब वो ऐसे कैसे डिस्टिंग्विश कर पाता है, कहता है कि मैं जब वहाँ पे टिकट विंडोज़ को ध्यान से वो देखता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ही टिकट विंडोज़ हैं, कम टिकट विंडोज़ हैं जहाँ से टिकट मिले, या फिर वो ट्रेन स्टेशंस के जो गेट हैं, ट्रेन के जो गेट हैं वो कम हैं, मीन्स विंडोज़ कम हैं, कुछ थोड़े से फिजिकल डिफरेंसेस वो वहाँ पे नोटिस करता है। कहता है कि जो बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ है, उस इंफॉर्मेशन बूथ को वो उसका स्टाइल और डिज़ाइन भी चेंज है, वो लकड़ी का बना हुआ है, और वो ओल्ड लुकिंग है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना ज़माने का कोई है। और साथ ही साथ उसमें जो आदमी बैठा है, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ उस बूथ में, सेंटर में जो बूथ है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए व्यक्ति बैठा है, वो ग्रीन कलर का आई शेड लगाया हुआ है, और जो स्लीव्स प्रोटेक्टर्स पहना है। स्लीव प्रोटेक्टर्स एक तरीके से ग्लव्स टाइप के होते हैं, जिनमें हाथ नहीं होता है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आस्तीनों की तरह वो चढ़ा लिया जाता है आस्तीनों के ऊपर, ताकि आस्तीनें गंदी ना हो। तो ये पुराने ज़माने में पहनते थे लोग, जब मे बी वो प्रिंटिंग में इन्वॉल्व हों, या कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, खासकर स्लीव्स, तो वो स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ है, इन्फॉर्मेशन बूथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो दिस लुक्स अ लिटिल वियर्ड टू हिम कि आज की डेट में ऐसा तो कोई नहीं पहनता है। और ये क्या है, फिर दूसरी चीज़ वो जो नोटिस करता है, वो नोटिस करता है लाइट्स। जो लाइट्स वहाँ पर हैं वो फ्लिकर कर रही हैं, फ्लिकर कहते हैं ना, हिल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, बिल्कुल ठीक से लाइट नहीं आ रही है, हिल रही हैं। सो जैसे कि मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती में की जो रोशनी है, या जो मोमबत्ती की लौ है, वो हिलती है, और उससे उसकी रोशनी भी हिलती है। सो उसी तरीके से वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये लाइट फ्लिकर कर रही हैं, और फिर वो ध्यान से देखता है कि ऐसे आखिरकार क्यों फ्लिकर कर रही हैं। तब उसको पता चलता है कि ये जो फ्लिकरिंग हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये ओपन गैस लाइट, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, जैसे कि मशाल समझ लो, ओपन फ्लेम है वो। ऐसा नहीं है, जब भी आमतौर पे ऐसा कैंडल रखी होती है और वो खुली होती है, या लैम्प हो वो खुला हुआ है लैम्प, तो वो लौ जब हिलती है तो लाइट भी हिलती है। लेकिन जब उसकी शीशे की जो चिमनी लैम्प में लगा देते हैं, या दिए में लगा देते हैं, तो वो जब उसको कवर कर लेते हैं तो वो फ्लिकर नहीं करती जब उसमें हवा नहीं आती। तो इसीलिए वो ओपन फ्लेम है मशाल की तरह, और वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, इसलिए वो फ्लिकर कर रही हैं। देन ही अंडरस्टूड द रीज़न। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something.
I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. Back of her, out of the tracks, I got a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack. And then I knew. So what happened? He finds it कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। जहाँ से मैं आता हूँ वैसे नहीं दिख रही, पुराने ज़माने की चीज़ दिख रही है, चाहे वो बूथ हो चाहे वो लाइट हो, वो सेटिंग बहुत पुरानी है, मतलब जिस तरीके से वो पूरा सीन सेट है वो बहुत पुराना है। और वो वहाँ देखता है, वो देखता है कि भाई जो ब्रास स्पिटून्स मीन्स जैसे पीक दानी को बोलते हैं स्पिटून्स, एंड वो कहता है ब्रास के पीक दानी फ्लोर पे रखी हुई है, एंड एकदम से उसकी रोशनी आंखों में आती है, चमक आती है, एक ग्लिंट ऑफ लाइट, और फिर वो जब उस तरफ देखता है कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, तब उसको पता चलता है कि किसी ने अपनी जेब से गोल्ड वॉच निकाली है, एंड दैट पॉकेट वॉच जिसमें चेन लगी होती है और डायल होता है, और उसको खोल के वो टाइम देखता है, और टाइम देखने के बाद वो ऐसे करके फ्राउन करता है, एंड फ्राउन करने के बाद वो बंद करके अपनी जेब में रख लेता है। उसके कुछ ड्रेसिंग से बता रहा है कि भाई ब्लैक डर्बी हैट पहनी है, सूट में 4 बटन, कुल मिला के जो उनके कपड़े हैं वो पुराने ज़माने के। फिर वो एक औरत को देखता है, जो औरत आ रही है, औरत की भी जो ड्रेसिंग है, जो कपड़ों का स्टाइल है, बड़े इलाबोरेट वे में इसने बताया है कि वो भी काफ़ी पुराना है। साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग हैं उनकी वो हैंडल बार मुस्टाश है, जस्ट लाइक माइन यू कैन से। सो इस तरीके से हैंडल की तरह उनकी मुस्टाश है, साथ ही साथ उनके साइड बर्न्स जो जिनके हम कल में कहते हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। और जैसे पुराने ज़माने में होता है, तो कह रहा है आज तक मैंने इतनी बियर्ड्स और हैंडल मुस्टाशेज़ और साइड बर्न्स कभी ज़िंदगी में नहीं देखे लोगों के, क्योंकि वो एक ऐसा समय था 20th सेंचुरी जहाँ पे सब लोग क्लीन शेवन रहते हैं, नॉट लाइक 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में आजकल तो एवरीबडी लाइक दे कीप स्टबल और दे लव टू कीप बियर्ड्स, बट 20th सेंचुरी पीपल वर नॉट वेयरिंग दैट मच ऑफ बियर्ड. They were not keeping mustaches and of course the sideburns, but अब तो बड़ा कॉमन सा हो गया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अभी का। सो इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा विचित्र है या थोड़ा सा abnormal है कि भाई ये क्या हो रहा है, पीपल वाई दे आर कीपिंग, ये क्या कैसा स्टाइल है। सो देन ही काइंड ऑफ फाइनली केम टू अ कंक्लूजन, जब वो एक कार को देखता है, लोकोमोटिव को देखता है उस औरत के पीछे से आता हुआ, और मतलब बैकग्राउंड में, और बहुत ही सावधानी से और तमीज़ से वो चीज़ों को नोटिस कर रहा है। Then he realizes कि भाई this is not the time from where I belong. This is some old time that I have come to. एंड उसको श्योर करने के लिए, टू जस्ट टू मेक श्योर, व्हाट डज ही डू, लेट्स सी व्हाट डिड ही डू, लेट्स सी। To make sure, I walked over to the newspaper boy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the World. And the World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. So ही कुड मेक इट बाई कि इन लोगों की ड्रेसिंग और इन लोगों का जो स्टाइल है वो समवेयर 1890s की तरह कुछ है, 1890 समथिंग, एंड ही वॉज नॉट श्योर विच ईयर, बट ही जस्ट वॉन्टेड टू गो अहेड एंड फाइंड आउट कि एक्चुअली द डेट, व्हाट इज़ द डेट। तो वहाँ पे जो न्यूज़ बॉय है, ही रश टू हिम एंड ही फाइंड आउट कि भाई क्या है उसके पास, देखिए कौन सा पेपर है, पेपर में क्योंकि डेट होती है, वॉज इंटेलिजेंट। सो जब पेपर में डेट देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे पेपर होता है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज़ अ पेपर विच वॉज लाइक ओल्ड पेपर, जस्ट लाइक द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूज़, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसी तरीके से द वर्ल्ड। वो कहता है ये वर्ल्ड जो पेपर है तो भाई सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। सो लाइक इट वॉज वे बैक जब ये पब्लिश हुआ करता था, एंड फिर जब वो उसमें डेट नोटिस करता है तो दैट डेट वॉज 1894, और फिर जब वो उसको देखता है 11 जून 1894 तो वो शॉक्ड हो जाता है, एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ अ प्रूफ। और उसमें कोई स्टोरी होती है, लीड स्टोरी उस टाइम के देन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के ऊपर। तो कह रहा है ये न्यूज़पेपर का प्रिंट या ये न्यूज़पेपर के बारे में तो मैंने सिर्फ 1%
public library files में ही देखा है. I have not seen this paper like this. So this is indeed I have kind of traveled time और मैं पुराने ज़माने में पहुँच गया. So it is a kind of a portal as in where he had traveled to another time. इसको पढ़ के मुझे एक मूवी की याद आ रही है, जॉन कार्टर. जॉन कार्टर आप लोगों ने देखी है? हैव यू वॉच जॉन कार्टर? जॉन कार्टर में भी कुछ इसी तरीके से होता है कि वो आता है और फिर दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, काइंड ऑफ पोर्टल. सो दिस स्टोरी इज लाइक दैट. सो what he's saying, it's interesting. Let's see. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. In the year 1894, I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Now, what he's now talking to us, he said that ये अब हमसे बातें कर रहा है. अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने सोचा कि भाई आई शुड गो अहेड एंड चेक इट आउट, कि भाई टिकट विंडो में जाऊँ और वहाँ से टिकट लूँ. और मैं वहाँ पे गया और मैंने उसको बोला कि भाई मैं कहीं पर भी यूनाइटेड स्टेट्स में जा सकता था. तो मैंने सोचा कि 2 टिकट लेता हूँ, एक अपने लिए और एक लूजा के लिए. एंड आई विल टेक 2 tickets to go to Galesburg, Illinois. Galesburg, Illinois is जो ये जगह है वहाँ जाना चाहता है. अब देखते हैं गेल्सबर्ग इलिनॉय क्यों जाना चाहता है फाइनली. सो अब ये हमसे बातें कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन देयर? कभी क्या तुम लोग कभी गेल्सबर्ग इलिनॉय गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल. अभी भी बहुत अच्छा टाउन है. With big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long. And people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans, with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. And now what he says that, okay, this is the time I want to go. And ये वो जगह है कि तुम कभी गए हो जहाँ पर वहाँ अभी भी बहुत अच्छी जगह है. वहाँ पे बड़े बड़े फ्रेम के घर बने हैं, बड़े बड़े लॉन हैं, और और बहुत बहुत ट्रीज़ हैं, बहुत ग्रीनरी है वहाँ. और वो ट्रीज़ इतने सारे हैं कि वो ट्रीज़ इतने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं और ऊपर जाके वो उनकी ब्रांचेस आपस में जुड़ गई हैं. एंड दे आर फॉर्मिंग अ रूफ, एक्चुअली अ रूफ फॉर नीचे जाने वालों के लिए. दे आर फॉर्मिंग रूफ. एंड ऐसा लगता है कि स्ट्रीट्स को उन्होंने रूफ्ड कर रखा है. और इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आराम से समर इवनिंग्स में 1894 में लंबी होती हैं, दिन तो लंबे होते हैं, तो उस इवनिंग में लोग आराम से अपने लॉन में बैठते हैं तसल्ली से. और जितने भी लोग हैं, स्पेशली मेन जो हैं, दे स्मोक देयर सिगार्स रिलैक्स्ड, दे आर टॉकिंग क्वाइटली, आराम से शांति से बातें कर रहे हैं. कोई रैट रेस नहीं है जैसे आज की दुनिया में. मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, रात हो गई है, मुझे घर जाना है जल्दी, एंड मैं सबवे ले रहा हूँ, ट्रेन ले रहा हूँ, हसल बसल, इन सब से दूर शांति और सुकून, उस तरीके की ज़िंदगी है वहाँ पे. कोई रैट रेस नहीं है कि भाई भागा दौड़ी पे ज़िंदगी नहीं. आराम से बैठे हैं, सिगार पी रहे हैं. औरतें जो हैं वो पाम लीव्स के फैन से हैंड फैन मतलब हाथ से पंखा झेल रही हैं, कर रही हैं, और आसपास फायरफ्लाइज जुगनू हो रहे हैं. तो ही काइंड्स ऑफ सेट अ मूड फॉर अ वेरी काम इवनिंग, relaxed evening, away from the hustle bustle and rat race of the modern world. It's like calming and soothing इफ़ेक्ट सा दे रहे हैं ये इन्वामेंट उसको. और ये ऐसा ही माहौल है वहाँ का. सो इट्स अ पीसफुल वर्ल्ड. एंड ही सेज दैट कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि 1894 में ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो कह रहा है इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी 20 सालों बाद होगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 40 सालों बाद होगी फ्यूचर में. सो ये जो समय था वो समय ना चिंता का, ना किसी चीज़ की कोई वरी नहीं. मुझे वहाँ के 2 टिकट चाहिए.
So it shows that he wants to escape, and it shows that he does not like the current situation where he is living right now. The kind of the environment, maybe the social setting that he is in, he doesn't like it. And this is what paragraph tells us about it. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare. And I had enough for 2 coach tickets, one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was just staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you're trying to skin me, you won't get very far. So he's trying to say that he said that if you are trying to skin me, you won't get very far. So you will not go, दूर तक नहीं भाग पाओगे अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो. And he glanced at the cash drawers beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. So what happened is कि भाई मैंने कहा मुझे 2 टिकट दो. मुझे मालूम था मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 2 टिकट ले सकता हूँ अपने लिए और लुइसा के लिए. लेकिन उसने मेरे हैट बैंड को देखा, जो मेरे हैट पे बैंड फैंसी सा हैट बैंड लगा है, उसने उसको देखा और फिर उसके बाद बोलता है कि अपना फिगर का कैलकुलेट किया कि भाई इतना पैसा हो गया. और जब मैंने 2 टिकट के लिए पैसे गिनने लगा तो वो मेरे हाथों में जो पैसे गिन रहा था वो देखता है और कहता है कि ये क्या है, ये क्या गिन रहे हो तुम, ये तो मनी नहीं है, इट एंट मनी. तो फिर बाद में वो देखता है कि अगर तुम मुझे स्किन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अगर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. ओके. एंड जब मैंने पैसे देखे फिर जाहिर सी बात है वो पैसे अलग हैं, वो नए पुराने बड़े पैसे, डिफरेंट पैसा है उस ज़माने का और इस ज़माने का. तो लेकिन वहाँ से मैं पीछे मुड़ता हूँ और भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है. कि ऐसा नहीं लगना है कि भाई क्योंकि जेल 1894 की भी बहुत अच्छी नहीं है. सो दैट इज़ द रीज़न आई टर्न्ड अवे. एंड दैट वाज दैट. And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. So what does he say? कि भाई उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं वहाँ से निकलता हूँ और फिर मैं भाई जितने भी मेरे पास पैसे होते हैं लंच आवर में, मेरे पास $300 ही हैं, $300, और वो $300 को लेकर मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी कन्वर्ट कर ली. कि मैं भाई पॉन शॉप में गया और उसको बोला कि भाई इसको कन्वर्ट कर दो और मुझे पुराने सिक्के या पुराना पैसा चाहिए 1894 का. उसने पुराना पैसा लिया एंड वो सारे पैसा ले लिया. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रुपये हैं और अगर हम किसी शॉप पे जाएं और बोलें कि जिसके पास पुराने सिक्के हैं और बोलें कि हमें 2 रुपये 98 में या 54 में या 1 आना में 2 रुपये दे दो, तो ही विल नॉट 2 रुपये के 2 रुपये ही नहीं देगा. लेकिन जो ओल्ड करेंसी होता है उसमें वो कुछ थोड़ा कमीशन और प्रीमियम रख लेते हैं कि भाई हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें इतना रुपया चाहिए, तो 2 रुपये के मे बी 1 रुपये या 2 आना या समथिंग लाइक दैट ऐसा ही मिलेगा. सो इट गॉट कन्वर्टेड. सो $300 $200 से कम में मिले उसको. $300 उसने दिए लेकिन उसको $200 से कुछ कम मिले ओल्ड स्टाइल में. And old style bills means रुपए. बट आई डिडंट केयर. उसने कहा कि इट्स ठीक फाइन अगर $300 को 200 समथिंग डॉलर्स में अगर उसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया तो इट्स फाइन फॉर मी. बिकॉज उस ज़माने में भाई 13 सेंट्स में 1 दर्जन अंडे आ जाते थे. सो ऑफकोर्स उस ज़माने में चीज़ें भी तो बहुत सस्ती होती थी. अगर पैसे कम मिल रहे हैं तो कम पैसों के पास कम चीज़ें भी तो सस्ती थी. सो ही डिडंट वरी. लेकिन ये जो बात है पैसा उसने $300 को
$200 में कन्वर्ट करा लिया, ये वरिड करता है उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को. But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough. भाई बहुत बार उसने ढूंढा लेकिन अब उसको वो पुराना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं मिल रहा. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking there every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is, all right, in 1894. So why he wants to go to Galesburg, Illinois, वो इतना कैसे जानता है उस बारे में? क्योंकि वहाँ उसका चाइल्डहुड बीता है, वो बचपन जो है गेल्सबर्ग में बीता है. इस पैराग्राफ में हमें पता चल रहा है लुइसा और ये दोनों मिलकर उस थर्ड लेवल को अब एवरी डे एवरी टाइम ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला. लेकिन हाल ही में third level में कभी नहीं मिला. And after a while I stopped. I went back to my stamps. नहीं मिला. और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब नहीं मिल रहा है. So he started collecting stamps again. जो स्टैम्प कलेक्शन का उसका शौक था, वो स्टैम्प उसने फिर कलेक्ट करना शुरू कर दिया. एंड फिर अब इसको पता चलता है कि सैम वीनर जो उसका फ्रेंड है, एक सिटी में रहने वाला एक फ्रेंड, वो खो गया है. सैम वीनर is disappeared. अब सैम वीनर कौन है? He's just a city boy. अभी आगे भी पता चलेगा सैम वीनर कौन है एक्चुअली. सो सैम वीनर इज डिसअपियर्ड एंड नोबडी न्यू वेयर. कहाँ गया किसी को नहीं पता. लेकिन आई यूज्ड टू टेल हिम बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड. मुझे कुछ सस्पेक्ट है, मुझे कुछ अंदाज़ा है वो कहाँ गया होगा. एंड क्योंकि सैम जो है एक सिटी बॉय है, इस हसल बसल में शहरी लड़का है, शहर में रहता है और इस हसल बसल और भागा दौड़ से काफ़ी परेशान ऑफ कोर्स होगा. और मैं उसको गेल्सबर्ग की बातें बताता था. मैंने उसको गेल्सबर्ग के बारे में सब डिस्कस किया है उसके साथ, जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, जो अभी थोड़ी देर पहले नरेटर ने हमारे साथ शेयर किया कि वहाँ पे कितना सुकून भरी ज़िंदगी है. सो वो उसको बहुत पसंद आती थी मेरी बातें जब मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था. तो अब भाई क्योंकि मैं उसको बताता था, मैं वहाँ पे स्कूल जाया करता था. आई वेंट टू स्कूल देयर. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि गेल्सबर्ग जो है, वो जो नरेटर है, जो चार्ली है, उसका बचपन वहाँ बीता है, वहाँ पे उसने पढ़ाई करी है. तो वो वहाँ गया है, उसको वो बहुत पसंद था. एंड दैट्स वेयर ही इज़. और मुझे पता है वो वहीं है, 1894 गेल्सबर्ग में मौजूद है. मतलब उसे थर्ड लेवल मिल गया और वो थर्ड लेवल से 1894 गेल्सबर्ग पहुँच चुका है और वो वहीं है. क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पागल थोड़ी ना हो गया है. लेट्स सी वो ऐसा कैसे कह सकता है दौड़ पे. बिकॉज वन नाइट, एक रात, fussing with my stamp collection. I was like, going through my stamp collection, जो भी मैंने stamp collect किए हैं, I found, क्या मिल गया उसे? I found, well, do you know what a first day cover is? I told you, right? If you forgot, pause and go back, rewind and see what did I tell you about first day cover. So first day cover क्या होता है तुम्हें मालूम है? When a new stamp is issued, now he's telling what is first day cover. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. And the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank papers in the envelope. वही चीज़. I was going through fussing around and then I saw the first day cover. और फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जो मैंने तुम्हें बताया, ये वही होता है कि वो खुद को मेल कर लेते हैं जिसमें डेट और वो
प्रूफ हो जाता है। और फिर वो फर्स्ट डे कवर होता है। और भाई कोई क्यों खोलेगा, उसको मालूम है कि ये मैंने अपने आप को ही भेजा है और ये ब्लैंक है, तो वो फर्स्ट डे कवर ऐसे ही होता है, वो ब्लैंक पेपर उसके अंदर होता है और वो उसको अपने आप को भेज लेता है। तो वो काइंड ऑफ नोबडी टेक्स इंटरेस्ट कि भाई कौन खोलेगा उसको, जब जानता है इसके अंदर कुछ नहीं है। सो दैट इज़ द फर्स्ट डे कवर। और उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। That night among my oldest first day covers, बहुत सारे first day covers हैं उसके पास, और oldest first day cover जब उसने खोल के देखा, I found one that shouldn't have been there। मुझे एक ऐसा first day cover मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास वो first day cover था ही नहीं, but there it was। लेकिन वो था वहाँ पर। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। क्यों? क्योंकि किसी ने वो मेरे ग्रैंडफादर के घर पे गेल्सबर्ग में वो मेल किया था। अब वो कौन है? That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894। The postmark showed that, yet I did not remember it at all। कह रहा 1894 में मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस में उसने किसी ने वो पोस्टमार्क भेजा, लेकिन मुझे वो याद नहीं है वो फर्स्ट डे कवर कि वो मैंने कब भेजा। This is the chapter, the third level, line by line explanation। I hope you enjoyed it, and if you have any confusion, if you have any questions, if you have any requests, go ahead and comment on it।